السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اسلام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ تلنگانہ حکومت کو واجب الادا رقم جلد جاری کریں، کارپوریشن کے قرض پر نظر ثانی کے لیے رہنمائانہ خطوط جاری کریں۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن سے بھٹے وکرمارکا کی ملاقات۔ ریونت ریڈی منحوس شخص، مہاراشٹر کے بعد دہلی میں بھی کانگریس کو ڈبو دیا۔ راہل گاندھی اور ریونت ریڈی مودی کے اصل کارکن، کے ٹی آر کا طنز۔ تلنگانہ میں نئے راشن کارڈ کی درخواستوں کے انتقال کا عمل روک دیا گیا، ویب سائٹ بند۔ می سیوا سینٹرز پر عوام کا ہجوم، عوام کی حکومت پر برہمی۔ مرغیوں میں پراسرار بیماری، صورتحال پر نظر رکھنے کنٹرول روم کا قیام۔ پولٹری صنعت کے نمائندوں کے ساتھ حکومت کا اجلاس، پڑوسی ریاستوں سے چکن کی سربراہی روک دی گئی۔ اور تلنگانہ ہنمکنڈا میں ٹرانسپورٹ کمشنر غیر محسوب اثاثوں کے سلسلے میں گرفتار، 4 کروڑ سے زیادہ کے اثاثوں کا انکشاف۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ بی بی کیو سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹے وکرمارکا نے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن سے ملاقات کی۔ دہلی دورے کے موقع پر ہفتے کے دن بھٹے وکرمارکا نے نرملا سیتارمن سے ملاقات کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے ریاست کو آنے والے فنڈز کو جاری کرنے کی درخواست کی۔ اس موقع پر فنڈ سے متعلق جو مکتوب روانہ کیے گئے تھے اس کو پیش کیا۔
भट्टी विक्रमार्का ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस और SPV कर्ज को नजरसानी करने के लिए रहनुमाना खतूत जारी करने का मुतालबा किया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को वाजिबुल अदा रकम को जल्द से जल्द अदा करने पर जोर दिया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश तक़सीम जदीद बिल के मुताबिक पसमानदा अजला को खुसूसी फंड्स को जारी करने का भी मुतालबा किया। तक़सीम बिल के मुताबिक आंध्र प्रदेश से फंड्स की मुंतकली को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आंध्रा और तेलंगाना पावर यूटिलिटी के दरमियान ज़ैर इल्तिवा बकाया जात हैं, इसकी यकसुई करने पर जोर दिया। इस इजलास में नायब वज़ीर आला के हमरा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एक मनहूस शख्स हैं। जहां पर कांग्रेस पार्टी की मुहिम के लिए गए, वहां कांग्रेस को शिकस्त हुई। पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इंतखाबात में कांग्रेस के जवाल का रेवंत रेड्डी ने आगाज किया, दिल्ली में इख्तिताम किया, आने वाले दिनों में इसको जारी रखेंगे। KTR ने कहा कि राहुल गांधी मुल्क में BJP को कामयाब बनाने के लिए आ रहे हैं। मुल्क में नरेंद्र मोदी और BJP के सबसे बड़े कारकुन रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी हैं। KTR ने कहा कि 1 साल के अंदर तेलंगाना अवाम हुकूमत के मुखालिफ हो चुके हैं। रेवंत रेड्डी अवाम की तनकीदें सुनेंगे तो कहीं डूब कर मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी अवाम के दिलों में है। मजालिस मकामी के इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे तो कामयाब होंगे। దయచేసి మీరందరూ కూడా మన్నించాలని కోరుతూ మరి ఇప్పుడే ఇక్కడికి వస్తుంటే పత్రికా మిత్రులు చెప్తున్నారు ఢిల్లీ ఎలక్షన్ ఫలితాలు వచ్చినాయట, చూసిరా మీరంతా? సక్సెస్ఫుల్గా మన ఐరన్ లెగ్ ముఖ్యమంత్రి వేయండు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎంత వచ్చింది? ఎంత? నిన్న మొన్నటి దాకా మనం బాగా అన్నాడు కదా, 0-0 అని. ఇప్పుడు ఆయనకు కూడా వచ్చింది గాడిది గుడ్డు 0. మనోడు పోయి మొత్తానికి మహారాష్ట్రలో కూడా కొట్టిండు. ఆడ ఇంకా కొన్ని వచ్చినట్టున్నాయి. ఇక ఢిల్లీకి పోతే మాత్రం నాశనం అయిపోయింది. ఇప్పుడు అడుగు నాశనం అయింది, ఆడ ఖతమే అయిపోయింది. ఇప్పుడు 0. కానీ ఒక్కటి మాత్రం రాహుల్ గాంధీకి మనందరం మంచిగా సపోర్ట్లు కొట్టి అభినందనలు చెప్పాలి. రాహుల్ గాంధీ అంటూ ఏం చేస్తుండే దేశంలో యాడాడ నిలబడుతుందో కాంగ్రెస్ పార్టీ అలాగే ఎక్కడెక్కడైతే నిలబడుతుందో వేరుగా అక్కడ బీజేపీని మాత్రం గెలిపించి వస్తున్నాడు. పక్క అక్కడ అందరూ నొడగొట్టి బీజేపీని గెలిపించి వస్తాడు. ఇవాళ ఈ దేశంలో నిజంగా చెప్పాలంటే నరేంద్ర మోడీకి బీజేపీకి అతిపెద్ద కార్యకర్త ఎవడన్నా ఉన్నాడా అంటే రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి. బడే బాయ్ చోటే బాయ్. మీకు అందరికీ మన తెలంగాణలో కూడా సిల్కర్ చెప్పినట్టు చెప్పిండు కేసీఆర్ సార్. ఏం చెప్పిండు ఎలక్షన్లకు ముందు? అరే కాంగ్రెస్కు దబ్బన ఓటేస్తే తప్పిదారి, రైతు బంధు రామ్ అవుతుందని చెప్పిండా? అయ్యిందా? ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ రైతులు మైకు పెడితే ఎట్లా తిడుతురు? అమ్మతో చెప్తున్న కిసోటి తిట్లుంటాయని కూడా తెలియదు నాకు. అరే అరే ఏం తిట్లా? నేను తాత తిడుతుండే 4.5 నిమిషాలు ఉంది ఆ వీడియో. ఒక 4.5 నిమిషాలలో ఒక 400-500 తిట్లు తిట్టిండు. तेलंगाना BJP के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि शराब स्कैम के खिलाफ दिल्ली के अवाम ने फैसला दिया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बदनवानी के खिलाफ जदोजहद करने के लिए सियासत में कदम रखने वाली आप पार्टी की आखिर में बदनवानी करने पर ही शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि बदनवानी में इजाफा हुआ तो क्या होता है, इसका जवाब दिल्ली ने दे दिया है। केजरीवाल और सिसोदिया जैसे कायदीन को दिल्ली की अवाम ने हराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को देखकर रहम आ रहा है। कांग्रेस की दिल्ली में 3री बार शिकस्त हुई है। कांग्रेस को कभी कामयाबी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ बीजेपी को शिकस्त देने के बारे में कांग्रेस सोचती है। तेलंगाना महकमे सिविल सप्लाईज की तरफ से जुमा की शाम नए राशन कार्ड और पुराने कार्ड्स में नामों के इंदराज के लिए मी सेवा से रुजू होने के लिए सर्कुलर जारी किया गया था। अवाम की बड़ी तादाद जुमा की शाम मी सेवा सेंटर पर जमा होनी शुरू हुई। रात 12 बजे तक मी सेवा सेंटर्स पर चंद दरख्वास्तों का इंतकाल हुआ, लेकिन इसके बाद वेबसाइट बंद कर दी गई और आज सुबह जब शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ मी सेवा सेंटर्स पहुंची तो उन्हें पता चला कि साइट बंद कर दी गई है। अवाम इंतहाई बरहम देखे गए
उनका कहना था कि हुकूमत हमारे साथ खेल रही है। पहले सर्कुलर जारी किया जाता है, लेकिन फिर अचानक वेबसाइट को बंद कर दिया जाता है। ज़ईफ लोग भी मी सेवा सेंटर पर देखे गए। मी सेवा सेंटर का इंतजामिया भी मौजू जवाब देने से कासिर नजर आया। खवातीन का कहना था कि वो बच्चों को और घर के कामकाज छोड़ कर आई हैं, लेकिन उन्हें यहां आने पर पता चलता है कि वेबसाइट बंद हो चुकी है। उन्हें वार्ड ऑफिस या राशन के दफ्तर को जाने के लिए कहा जा रहा है। आखिर क्यों हुकूमत हमारे साथ इस तरह का मजाक कर रही है? इस वक्त तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और दूसरे वज़रा दिल्ली में मौजूद हैं। इधर अवाम मी सेवा सेंटर से वार्ड ऑफिस और फिर राशन के दफ्तर के चक्कर लगा रही है। पहले कहा गया था कि प्रजा पालना के दौरान वसूल की गई दरख्वास्तों की बुनियाद पर राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। फिर कहा गया कि कास्ट सर्वे में हिस्सा लेने वालों को राशन कार्ड दिए जाएंगे। फिर अचानक सर्कुलर जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि मी सेवा सेंटर से रुजू हों, और अब इस वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। आखिर हुकूमत क्यों इस तरह तकलीफ दे रही है, यही अवाम का सवाल है। अवाम की शिकायत थी कि मी सेवा मराकज़ पर 45 रुपये फीस रखी गई थी, लेकिन 100 ta 150 रुपये शुरू में वसूल किए गए। हमारे फील्ड रिपोर्टर्स अब्दुल माजिद और अब्दुल हफीज ने शहर के मुख्तलिफ मी सेवा सेंटर्स का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और बताया कि अवाम हुकूमत और सिविल सप्लाईज के रवैये पर इंतहाई बरहम हैं। मतलब यहाँ मैं राशन कार्ड के लिए बनाने के लिए आई, मैं यहाँ पूरा बच्चों को छोड़कर छोटे छोटे बच्चे घर में आई। ये मजाक कर रहे, कल शाम में डाले ना, आज मॉर्निंग में आई तो यहाँ बोल रहे बंद हो गया। ऐसा काहे को कर रहे? खाली पब्लिक को परेशान कर रहे, बस हो गया। अब बोल रहे घर पे आते, घर पे आके क्या करते जी? घर पे इतने मेंबर्स के हो जाते क्या? రేషన్ కార్డు లేదు, అసలు ఇల్లు లేవు, ఏం లేవు. రేషన్ కార్డు ఇస్తారని మేము తిరుగుతూనే ఉన్నాము. అక్కడికి వెళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళు అంటారు, కానీ రేషన్ కార్డు అయితే మాకు లేదు. ఫామ్ అక్కడ అమ్ముతారు, ఇక్కడ అమ్ముతా అంటున్నారు, ఇవ్వలేదు. राशन कार्ड के लिए आए हम लोग, इधर से इधर फिर आ रहे हैं। यूट्यूब में न्यूज़ में देखे कि 7 से शुरू हुआ बोल के, रात में देख के अब हम सुबह में आए। अब बोल रहे हैं बंद हो गई लाइन, बोल रहे हैं लोग, फिर क्या करना? कल क्या बोले थे जियो आया बोल के बोले थे, अभी रेशन कार्ड दे रहे बोल के ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया। अभी गवर्नमेंट का नोटिस भी है। अभी यहाँ मी सेवा पे लोग आके ठहरे तो इन क्या है पोर्टल बंद है वो है बोल के बोल रहे हैं। पब्लिक एक जगह पे ये नहीं रही, एक बार GHMC ऑफिस बोलते, एक बार उधर बोलते। करे रात में और सुबह सुबह राशन कार्ड बंद कर दिए। किसके बाप की जागी रही, पब्लिक गली गली फिर रही, औरतें बेहाल फिर रहे सुबह नींद में से उठे जब से। राशन कार्ड मी सेवा वाले बोले तो बोल रहे कि प्रजा पालना वाले घर पे आते, घर पे भीख मांगने आते, वोटों की आप लोग आए और राशन कार्ड देते पब्लिक को। सुबह से पब्लिक हर जगह पब्लिक फिर रही, लेडीज़ फिर रही सुबह सुबह घरों के काम छोड़ के, और एम्प्लॉयज़ फिर रहे राशन कार्ड के लिए। ये CM साहब 26 जनवरी बोले, नवंबर बोले, दिसंबर बोले, एक साल से पब्लिक को फिरा रहे। बाहर क्या है, फार्म ऑयल लोग देदार रहे, बेचदार रहे, फिर हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही। रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है कि सब कर रहे तो कर रहे बोलो, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे बोलो, ये तकलीफ़ मत दियो आप। कार्ड क्या से खाली फिर रहे, कोई दे रहा नहीं, और फार्म दे रहे नहीं। यहाँ पे यहाँ जो है साइट खुली नहीं, खुल के पे बंद हो गई, कब खुलेंगे आखिर? ये जो है फिरना हो रहा है क्या? और मैं राशन कार्ड के लिए 2014 के लिए अप्लाई करा था, मेरे को राशन कार्ड के लिए मेरे को नहीं हुआ। फिर अब मैं आके फिर वो मेरा 2014 का एप्लीकेशन पूछा उनसे, तो वो बोल रहे वो भूल जाओ और नया कार्ड नया फॉर्म ले लेके फिर अप्लाई करो बोल रहे। अब अप्लाई करने आए तो अब नहीं, यहाँ बाद में आओ बोल के भिजा दे रहे हैं। दूसरी तरफ शहर के मुख्तलिफ मी सेवा के जिम्मेदारों का कहना है कि गुज़िश्ता शाम सर्कुलर जारी हुआ था और रात देर गए वेबसाइट बंद हो गई। उन्हें हिदायत मिली कि दरख्वास्तें ना ली जाएं। मी सेवा सेंटर का इंतजामिया भी बेबस देखा गया है। हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त लेने के अहकाम जारी किए गए, लेकिन दरख्वास्तें न ली जाएं, इससे मुताल्लिक़ कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। कल 5:55 को अपने पास नोटिफिकेशन आया था कि नए राशन कार्डों की एप्लीकेशन मी सेवा में दाखिल हो रही बोल के। उसके बाद में 8 बजे के करीब में साइट खुली थी। रात में 12-1 बजे तक हम लोग ऑफिस पे थे, काम किए, उसमें 23-24 फॉर्म डाले। उसके बाद में रात में जब ऑफिस बंद करके चले गए, जब से जो साइट बंद है तो अब तक साइट बंद है। अभी इन्फॉर्मेशन तो ऐसा हम लोग को कुछ भी नहीं है कि साइट ओपन कब होने वाली है बोल के।
BRS पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि राशन कार्ड की दरख्वास्तों मी सेवा के नाम पर कांग्रेस ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तों के नाम पर मजीद कितनी बार धोखा देंगे। उन्होंने कहा कि प्रजापालना और तबकाती सर्वे में तफसीलात हासिल की गईं, ग्राम सभा के नाम पर ड्रामे किए गए, फिर एक बार मी सेवा में दरख्वास्तें दाखिल करने की बात कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि स्कीमात के नाम पर जो उछलकूद की जा रही है वो मजालिसे मुकामी इंतखाबात के लिए है। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तों के नाम पर वक्त गुजारी बंद करके गरीब आवाम को बहबूदी प्रोग्राम से फ़ायदा पहुंचाएं। हुकूमत ने मुर्गियों की एक वबा से निमटने डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला किया है। पोल्ट्री सनत के नुमाइंदों के साथ इस वबा से निमटने के इजलास तलब किया गया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री व फिशरीज ने हफ्ते के दिन सेक्रेटेरिएट में अपने चैम्बर में मुनक्किदा इस इजलास में दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ इस वबा से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। रियासत के चंद अजला में पोल्ट्री की मुर्गियों की गैर मुतवक्का अमवात की वजूहात जानने के लिए रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा लेने से इत्तेफाक किया गया। फौतशुदा मुर्गियों की तिब्बी जांच की जा रही है कि उनके फौत होने की क्या वजूहात हैं। जिले कलेक्टर से कहा गया कि वो मुर्गियों में इस वबा की सूरत हाल पर गहरी नजर रखें। पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो एहतियाती तौर पर दीगर रियासतों से आने वाली मुर्गियों के दाखिले को रोक दें। महकमे जंगलात के अहदेदारों से कहा गया है कि वो नकल मकाम करने वाले परिंदों की नकल व हरकत पर नजर रखें। इसके लिए 24 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से 1300 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें भी तश्कील दी गई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अजला मगरबी गोदावरी, गुंटूर, प्रकाशम से लाखों मुर्गियों के मुतासिर होने की तल्ला पर तेलंगाना में चौकसी अख्तियार की गई है। पोल्ट्री सनत से वाबस्ता नुमाइंदों ने किसी इम्कानी सूरत हाल से निमटने हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्का याखूतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीजन में 87 लाख रुपए के मसारिफ से NP2 पाइपलाइन के कामों का आगाज किया। रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की सरपरस्ती में याखूतपुरा में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। उन्होंने बताया कि रमज़ान से कबल बेशतर कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना भी मौजूद थीं। डिवीजन याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में NP2 पाइपलाइन के काम चालू हुए और उसके साथ सीवर का भी काम चालू हुआ। जो खान नगर के अतराफ में जितने भी अंदर गलियां थे वहाँ पे NP2 पाइपलाइन डाली गई और एक नाले का भी काम चालू हुआ, जिसकी लागत जुमला तमाम 5 कामों की लागत 87 लाख रुपए है। 87 लाख का यह काम चालू हुआ है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर, हबीब मिलत की क़यादत के अंदर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आने वाला महीना रमज़ान का है, हम चाहते हैं कि जितने भी ये काम है जो खोदम खादी के होते हैं और रमज़ान से पहले तकमील करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए रोज़ जहाँ जहाँ पे भी काम शुरू हो रहा है, अल्लाह के फजल व करम से मैं और मेरे साथ में वहाँ के मुकामी कारपोरेटर और ज़िम्मेदार तमाम के तमाम मौजूद रह रहे और कामों का जायज़ा ले रहे हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत और कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी और रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी की निगरानी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने इस सिलसिले में गोशा महल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने न्यू आगापुरा, सुबहानपुरा, चार कंदील और दरगाह यूसुफैन के अलावा दीगर इलाकों का तफसीली दौरा करके तरक्याती कामों का मुआयना किया और महकमे बलदिया के अहदेदारों, महिंदर और दीगर अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दीं। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खान के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की निगरानी में
सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के हमराह एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात की गई। उन्होंने पैदल तफसीली दौरा करके सरकारी महकमे जात, पुलिस, बलदी, बरकी और आबरसानी के अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर व मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बहादुरपुरा मूसा नदी से लगे असद बाबा नगर, किशन बाग और महमूद नगर में मच्छरों की कसरत की शिकायत का नोट लेते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुतल्लिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा को इक़दामात की हिदायत दी। हुसैनी पाशा ने कमिश्नर बलदिया से बात की और फॉगिंग टीम के हमराह नदी की सफाई को यकीनी बनाया। नदी में मौजूद जंगली बेल को भी निकाला गया। इसके अलावा अदविया का छिड़काव भी यकीनी तौर पर किया जा रहा है। रियासती हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम मरकजी हज सेमिनार इतवार 9 फरवरी को सुबह 9 से पहर 3 बजे मस्जिद टेक बगदादी नामपल्ली में मुनक्किद होगा। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदारत करेंगे। इस सेमिनार में हज कमेटी और खानगी टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज 2025 के तमाम आज़मीन मर्द व ख़वातीन शिरकत कर सकते हैं। सदर तौलियत कमेटी मस्जिद टेक बगदादी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि इस सेमिनार में मुमताज़ आलम दीन, मुफ्तियान इकराम, मशाइखीन अज़्ज़ाम शिरकत करेंगे, जिनमें काबिल ज़िक्र मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन, मौलाना मोहम्मद इब्राहीम शामिल हैं। इनके अलावा रुकन असम्बली माजिद हुसैन, कॉरपोरेटर ज़फ़र खान मेहमान खुसूसी होंगे। आज़मीन को मौज़ूआती मालूमात फराहम की जाएंगी। एहराम बांधने का तरीक़ा बताया जाएगा। ग़िलाफ़ काबा की ज़ियारत कराई जाएगी। घर से सफ़र हज और हज से घर वापसी तक तमाम उमूर का अहाता किया जाएगा। मौलाना मुख्तार ने तमाम आज़मीन से शिरकत की ख्वाहिश की है। ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। ज़ईफ़ आज़मीन के लिए लिफ्ट की सहूलत रहेगी। कुल हिंद सनती नुमाइश मसनूआत तिजारत के साथ साथ तहज़ीबी सरगर्मियों का मरकज़ भी है। नुमाइश के दौरान हर शाम कोई न कोई तहज़ीबी अदबी प्रोग्राम्स मुनक्किद होते हैं। जुमा की शाम नुमाइश गंगा जमनी तहज़ीब को पेश कर रही थी, जबकि नुमाइश सोसाइटी की जानिब से हिंदी उर्दू का मुश्तरका कवि सम्मेलन व मुशायरा मुनक्किद हुआ। इस कवि सम्मेलन व मुशायरे में अबरार काशिफ, शकील आज़मी, डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह, हिमाशी बाबरा, चिराग जैन, खुशबू शर्मा जैसे कदावर कौमी शुअरा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कन्वेनर मुक़य्यर हैदर ने नुमाइश को हैदराबाद की मुश्तरका तहज़ीब की अलामत करार दिया। एजाजी सेक्रेटरी सुरेंदर रेड्डी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रभाकर शंकर, जॉइंट कन्वेनर तक़ियुद्दीन शजी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। मेहमान खुसूसी शायरों ने हैदराबादी तहज़ीब को अपने कलाम और अपने खिताब के ज़रिए ख़िराज तहसीन पेश किया। आंध्रा कांग्रेस कमेटी की लीडर वाईएस शर्मिला ने अपने भाई और साबिक़ वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। शर्मिला ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने उनकी किरदार कशी की है और उनके वालिद वाईएस राजशेखर रेड्डी की जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी बताया कि साबिक़ एमपी विजय साई रेड्डी ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें अपने भाई की साजिशों का पता चला और इससे उन्हें दिली तकलीफ हुई है। शर्मिला ने सवाल किया कि क्या वो अपनी बहन और भांजों के साथ इंसाफ कर पाएंगे। तेलंगाना के हनमकुंडा में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पुपाला श्रीनिवास को आमदनी से ज्यादा असासों की दस्तयाबी पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक एसीबी की टीमों ने श्रीनिवास और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर एक साथ धावे किए हैं। बताया जाता है कि जेवरात के अलावा बैरूनी शराब की बोतलें, नगद रकम दस्तयाब हुई है। अब तक की तल्लात हैं कि तकरीबन 4 करोड़ के असासों का पता चला है। मजीद धावों की तल्लात मिल रही हैं।
اور ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ورک، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تلنگانہ حکومت کو واجب الادا رقم جلد جاری کریں، کارپوریشن کے خرچ پر نظر ثانی کے لیے رہنمائانہ خطوط بھی جاری کریں۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن سے بھٹے وکمارکا کی ملاقات۔ ریونت ریڈی منحوس شخص، مہاراشٹرا کے بعد دہلی میں بھی کانگریس کو ڈبو دیا۔ راہل گاندھی اور ریونت ریڈی مودی کے اصل کارکن، KTR کا طنز۔ تلنگانہ میں نئے راشن کارڈ کے درخواستوں کے ادخال کا عمل روک دیا گیا، ویب سائٹ بند۔ می سیوا سینٹرز پر عوام کا ہجوم، عوام کی حکومت پر برہمی۔ مرغیوں میں پراسرار بیماری، صورتحال پر نظر رکھنے کنٹرول روم کا قیام۔ پولٹری صنعت کے نمائندوں کے ساتھ حکومت کا اجلاس، پڑوسی ریاستوں سے چکن کی سربراہی روک دی گئی۔ اور تلنگانہ ہنمکنڈا میں ٹرانسپورٹ کمشنر غیر محسوب اثاثوں کے سلسلے میں گرفتار، 4 کروڑ سے زیادہ کے اثاثوں کا انکشاف۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد اسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔